Hello friend, so till the end of this video you will be master in arithmetic progression. So topic of this video is arithmetic and geometric progressions. So let's start our video and please like, share, comment and subscribe my video. First question by studying the topic arithmetic and geometric progression is, what is AP? What is AP? List of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term except the first term is called non-arithmetic progression. अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हो सकता है बहुत कम लोग समझ पाएँ. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन? ये कह रहा है कि ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जिनमें हर एक टर्म हमें ऑब्टेन होता है एक स्पेसिफिक नंबर या एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे इसके पिछले वाले टर्म से, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब पहले टर्म को छोड़ के, क्योंकि पहले टर्म से पहले तो कुछ है नहीं, तो उसी में जब हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा, फिर उसमें फिक्स्ड टर्म ऐड करेंगे तो उसमें थर्ड टर्म मिलेगा. इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से 2 4 6 8 dash dash dash. So this is in AP. How can you say that? जैसे ये हम मान लेते हैं पहला टर्म. पहला टर्म को हम इसकी भाषा में कहते हैं A. ठीक. देन अब अगर हम सेकेंड टर्म को, लेट्स से दिस इज फर्स्ट टर्म. ठीक. फर्स्ट टर्म को ही कहते हैं A और यह है सेकेंड टर्म A2. ठीक. A2 ले लिया. अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे A2 माइनस A1 तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि A3 और A2 को भी माइनस करने पे हमें मिलेगा, जो कि दोनों सेम है. इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस या फिक्स्ड नंबर. जो यहाँ पे ये कह रहा है ना फिक्स्ड नंबर, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस. अगर ये कॉमन डिफरेंस सारे टर्म्स में फिक्स है तो इसको कहेंगे इट इज़ इन AP. नाउ these are some formulas which will be used in solving the questions related to arithmetic progression. What is AN? That means as we are writing here A3, A2, A1 like that na. So AN, that means nth term, any term. A3 means third term, A2 means second term, A1 means first term or A means first term. So AN is equals to, and what is number of terms? Yeah, nth term. A plus A means first term plus n minus 1. n minus 1 means number of terms. Let's say the number of terms are 10. So n minus 1 will be 9 and difference is, let's say, 2. So D will be 2. Now second is L is equals to A plus. You can see the formula is same. So what is L? L denotes last term and last term is equals to AN. If there is a finite AP, that means it has some ending. So let's say it has n terms. It has n terms. So last term will be AN. Last term will be AN ना. तो last term is equals to क्या होता है? L. तो L is equals to AN. तो AN is equals to A plus n minus 1 into D. So L is equals to A plus n minus 1 into D. Now third is M is equals to n plus 1 upon 2 term. n is equals to what? तो रे कुछ समझ ही नहीं आएगा ऐसे. तो क्या है M? M है मिड टर्म. M क्या है? मिड टर्म. M क्या है? मिड टर्म है M. M कैसे फाइंड करेंगे? अगर N, लेट्स से ये है हमारा AP, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5. तो 5 क्या है? ऑड है या इवन? ऑड है. तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट द टर्म. लेट्स से वी शुड अप्लाई हियर
देयर आर हाउ मेनी टर्म्स 5 n plus 1 upon 2 means 5 plus 6 5 plus 1 by 2 term is equals to third term है ना। तो थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो कि है 6, तो इसका मिड टर्म क्या हो गया 6 हो गया। अगर m इवन है तो क्या करते हैं, उसके दो मिड टर्म होते हैं, एक तो n/2, अगर कह ले 6 थे तो 6/2 थर्ड आ गया, थर्ड टर्म हो गया। देन सेकेंड होगा n/2 + 1 मीन 6 + 7, तो इसमें अगर हम एक और ऐड कर दें या ये हटा दें तो इसका मिड टर्म क्या होगा 4 and 6। okay, then these are the formulas which are used in this second exercise. What is Sn means sum of n terms या n numbers. What is the formula? There are two formula. So first is if L, that means last term is not given, so we will apply this formula n/2 bracket 2a plus n minus 1 into d. If the last term is given, then it is so simple. What? Sn is equals to n/2 L plus n/2 L plus a. Now we will solve question. So क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप क्वेश्चन उस तरफ देख सकते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द AP whose nth term is 7 minus 3n, also find the 20th term. So एक हमें AP फाइंड करना है जिसका nth टर्म क्या है 7 minus 3n, 7 minus 3n। अब हमें इसका फाइंड करना है 20th टर्म। सो हाउ वी विल फाइंड, सो nth क्या होता था, कोई वेरिएबल है, इसका कोई ना कोई तो नंबर होगा, तो इसकी जगह n की जगह हम क्या रख देंगे 20। तो 20th टर्म इज इक्वल्स टू 20th टर्म इज इक्वल्स टू 7 minus 3 into 20, तो डायरेक्ट था 7 minus 60, that means 53 of minus this is the 20th term. Very easy. Now second question, what is second question, find the nth term and 12th term of the list 5, 2, -1, -4 dash dash dash. So we have to find the nth term and 12th term. This is AP. ये क्या है, AP है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सो इसका A क्या है 5 है, ठीक। इसका डिफरेंस क्या है 2 - 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा -3 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पहले निकालेंगे इसका nth टर्म। an का फॉर्मूला क्या होता था, अभी मैंने आपको बताया था a plus n minus 1 into d. This is the formula. So we have to find the nth term, so we will write the n like n. A is 5, n minus 1 into -3, that is difference। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर लेंगे -3n 5 plus -3n माइनस प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 - 3n। वेरी इजी, ये आ गया हमारा an, जैसा इस क्वेश्चन में दिया था 7 - 3n, ऐसा हमारा आ गया 8 - 3n। क्या कह रहा था आगे, 12th टर्म फाइंड करने के लिए इसमें 12 की वैल्यू रख देंगे, तो 812 इज इक्वल्स टू 8 - 3 into 12, 8 - 36। सो हमें क्या आंसर मिल जाएगा 28, किसका माइनस का। हो गया सॉल्व। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन आपको दिखेगा इस तरह। सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द 8th टर्म ऑफ एन AP whose first term is 7 and the common difference is 3। हमें क्या करना है, ये 8th टर्म निकालना है ऐसे AP का जिसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है 7 एंड डिफरेंस कितना दिया है 3।
इसका हमको कौन सा टर्म निकालना है, A8। बस अब इसको हम करना है सॉल्व। क्या था फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब n की जगह हमको रख देना है 8, a की जगह रखना है 7, n की जगह रखना है 8 माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 21 इक्वल्स टू 28। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक टाइप के। देन क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -3 एंड द 18th टर्म इज -5 देन फाइंड्स इट्स फर्स्ट टर्म। क्या कह रहा है, डिफरेंस कितना है इसका, -3, 18th टर्म। अब देखिए क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ, क्या है, 18th टर्म इसमें इसने दे दिया है। देन फाइंड्स इट्स फर्स्ट टर्म, तो हमें निकालना क्या है, A। वेरी इजी, फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, हम बहुत ज़िद्दी हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, an हमें कितना दे रखा है, a 18, तो a 18 रख देंगे। a कितना है हमें नहीं पता है, n माइनस 1 कितना है। अगर हमें 18 दे रखा है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 18 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, -3। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, एक है A18 और एक है a। नहीं, A18 हमें दिया है ना -5, तो हम यहाँ पे इसको रख देंगे, क्या रखेंगे, -5 इज इक्वल्स टू A हमें फाइंड करना है प्लस 17 इंटू -3, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 50 माइनस 51, A प्लस -51 -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू A, -5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू 46, 46 इज इक्वल्स टू A। हमारा फर्स्ट टर्म क्या निकल के आ गया, 46। नाउ वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कौन सा है। अब इसमें कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। AP क्या दे रखा है हमारा, 11852। क्या दे रखा है, 11852। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, -150 चेक करना है कि क्या यह कोई A टर्म है या नहीं। सो हम लोग कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या क्या दिया है हमें, A दिया है, A कितना दिया है 11, D नहीं दिया है, फाइंड कर लेंगे, -3 देख लो करके माइनस। अब हमें निकालना है -150, तो an की जगह रख देंगे हम -150। अब हम फॉर्मूला फिर से नहीं लिखेंगे, बोर्ड में जगह बची नहीं है। -150, a कितना है 11 प्लस n हमें पता नहीं है 1 इंटू डी कितना है -3। अब तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 161। अब ये रखेंगे n माइनस 1 इंटू था -3 का, ले आएंगे डिवाइड में, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 53.6 करके कुछ आएगा, तो अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 54.6 इज इक्वल्स टू n आ गया। सो जैसा कि आप देख सकते इंटीजर नहीं है, मेन क्या होता है इंटीजर होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ। सो दिस वाज माय वीडियो एंड दीज वर सम क्वेश्चंस एंड वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट पार्ट related to the formulas, and the questions related to the formulas of the AP will be completed. So if you have any doubt, tell me in comment box, and please like, share, comment and subscribe my video, and please support us.